one thing that Bollywood can learn from Banaras. Indiscipline. मेरे को किसी बॉम्बे के दोस्त का फोन आया कि दिशा पाटनी आ रही है, आप उसे दर्शन कराने ले जाओगे. Of course, like why are you even asking me? मैं पर्सनली दर्शन करा के लाऊंगा. Ready 1 2 3 cut. विशाल उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करो, चल कैमरे की. अब मैं WSOP 10 साल से पहुंचना चाह रहा हूँ. मेरी क्या स्ट्रगल है क्या नहीं है. Stop there. What is WSOP? Please tell it to everyone. WSOP is World Series of Poker where best of best from the world come and compete. Is there good money prize? 100 CR plus. क्या बात है? अगर बाई चांस मैं वहाँ कुछ कर दिया, अरे जलाल को तो हम कब से बोल रहे थे वो करेगा यार. Welcome to the new season of TRG podcast. The theme of this podcast is off the script. Generally, we don't have a script, but this time we are putting the conversation in a very candid way, and we are trying different formats this time. And for our first episode, I'm very lucky to have the first celebrity friend that I knew in Banaras when I started my business in 2015. I think the first video that I shot was of him. So welcoming to my studio, Abhishek Jalan. Thank you so much. Thank you brother. That's so kind words. इतना नहीं. मैं डिजर्व भी नहीं करता हूँ शायद. नहीं भाई. पहली बात तो जिसको नहीं पता है, ही इज अभिषेक जलान. वैसे पता सभी को है, अभिषेक जलान है ये. इनके बहुत सारे काम हैं, इनके बहुत सारे शौक हैं, एंड जनरली ही इज वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, एंड most of the people track his life through social media. So I wanted कि लोगों को inside of life of अभिषेक जलान पता चले. So that's my logic today. मेरा भी यही रीजन था पॉडकास्ट पे आने का, क्योंकि मेरे करियर की बिगिनिंग में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जब मैं सेलिब्रिटी का सी भी नहीं था. आज भी मैं अपने आप को तो नहीं मानता हूँ, कोई बोलने वाला कह दे तो बात अलग है. तो मेरा भी पॉडकास्ट पे आने का रीजन यही था कि जो दुनिया बाहर है, मेरी वही दुनिया मेरे अंदर भी है. मैं काफी अन्य लोगों की तरह वैसा नहीं हूँ कि सोशल मीडिया पे एक अलग लाइफ जी रहे हैं और रियल में अलग लाइफ जी रहे हैं. तो वो जो एक लाइन ड्रॉ खत्म करनी थी कि सब में सेम ही हूँ ऐसा, तो मेरे लिए भी जरूरी था आपके साथ एक बढ़िया पॉडकास्ट करना. तो शुरुआत करते हैं पहले. हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? मतलब यू वर बोर्न इन बनारस? No, my journey is like, I'll tell you my journey. I was born in Bombay. My parents used to stay in Bombay back then. Then my parents shifted to Varanasi like when I was born, like I was maybe 1-2 years. And then I spent my school life here, which was normal. It was like as any student would share. Then for college, I ended up going to Symbiosis Pune. Best college. Yes, it's good. Best city. It is good. So in the first year of being in college, there was a college fest happening in the college, which had a poker tournament. So back as a child, like I had memories of seeing my Jijus and everyone playing poker. So I thought कि देखते हैं क्या scene है. And I went to that tournament. I finished third. And it was the time ये तो कुछ competitive चीज लग रही है. And me being a very inquisitive guy, I got my head into it. And I started mastering poker more than studies. And this was in year 2013. 13. Okay. And by the end of 2013 and beginning of 2014, my father fell like sick and he couldn't take care of the business. So I had to drop my college and my poker plans and come back to the business. So you were back to Banaras? Yeah, I was back to Banaras in 2014. 14. फिर एक साल लगी चीजें सेटल होने के. डैड बेटर हुए, we hired a CEO, things got in line. So I just requested my dad that I want to, like, you know, go back and explore myself in my poker career if I can do anything or not. And I don't need backup from you because that's the stage I want to achieve कि मैं कुछ कर पाता हूँ कि नहीं. अपने And and I told him कि this is the kingdom you have already built and a kingdom can only have one king. I want to create my own I'll kingdom. use that line. I want to make my own kingdom. Because eventually, even if in this kingdom I enter, I would still be recognized as a prince. And I don't have any problem with that. I love my dad, but I just want to create something for myself, that young blood shit. तो मैं चले गया अपनी पोकर जर्नी पे. 2020 तक मैंने झंडे गाड़े. 2020 में मेरी मॉम की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी. So I decided to come back to my hometown and live with them. And like, you know, then my life started on another chapter. Got married during those times, was with my mom. Abhishek Jalan getting married. सब होना होता है लाइफ में, सब होता है समय के साथ साथ. तो वापस मम्मी के पास आ गया मैं 2020 में. अभी 2024 में मम्मी की डेथ हुई तो थोड़ा बनारस रहने का मन भी नहीं था. चीज़ें उतनी स्टेबल नहीं लग रही थी तो अकेले बैठे रहता था, सोचता था क्या करना है. फिर सडनली एक दिन 4-6 दोस्त घर मिलने आए थे. अब 4-6 दोस्त मिलते हैं, लड़के सारे, तो या दो चीज़ें करते हैं, या शराब पीते हैं या कुछ खेलने कूदने बैठ जाते हैं. शराब मुझे पीनी नहीं थी, मैं पीना भी नहीं चाहता हूँ, तो हम पोकर खेलने बैठ गए. और उस दिन पहली बार शायद मेरी वाइफ ने और मैंने खुद ने अपने चेहरे पे एक स्माइल देखी. मेरे को समझ में आया कि यार मम्मी के जाने के बाद कोई चीज़ मुझे हंसा पाई या स्माइल दे पाई तो यही है. तो फिर आई एम बैक
I'm back in the poker circuit. Yeah, you're always there. Yeah, so Don't but worry. now I have to manage my life between my business and my passion. Correct. My passion is also apparently my work, which is difficult for other people to understand. They think it's a hobby. But Whereas it's not the a best hobby. thing when you actually love your work. I was watching a reel last night. Me at 2 a.m. doing office work. Me at 2 a.m. playing a tournament. Correct. So how's your experience with poker going these days? अभी मैंने आपकी कल परसों में रील देखी थी, बहुत Yes. फाड़ू रील थी वो. I love the production quality, love the match, Thank you loved your so vibe. much. एकदम जैसे तुम रहते हो वैसे ही रहते हो. तो वही है, मैं तो आपको बोला सोशल मीडिया चाहे रियल लाइफ चाहे कैमरा लाइफ चाहे कोई भी लाइफ, मैं यही हूँ यार. अच्छा लगू तो लगू, नहीं अच्छा लगू तो ये मेरे साथ एक अलग प्रॉब्लम है. कोई मेरे को सेंटर लाइन पे नहीं रख पाता. या तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा हूँ या तो मैं उनके लिए बहुत खराब हूँ. ये एक मेरी क्वालिटी है कि खराब बात है मुझे नहीं पता. has anyone compared you to Anurag Kashyap? मेरे को बहुत वाइब मैच करती तुम लोगों की. वाइब नहीं, लोगों ने शक्ल के लिए तो पक्का बोला. शक्ल नहीं है, मतलब वेफर ही लगा लेता तो मैं अनुराग कश्यप जैसा लोग लगता. एक बात करने का तरीका, एक एटीट्यूड. पता नहीं लोगों ने बोला है और मेरे को पता नहीं क्यों बोला है, बट बोला है. यहाँ पर नए ऐड हो गए. हाँ नहीं, मेरे को रियलाइज आज ही वो देखने से. सो अब बताओ हाउस अभी क्या प्लान है तुम्हारे, क्या कर रहे हो? अभी प्लान बेसिकली ये है कि जब रियलाइज कर लिया कि खुशी तो पोकर में ही मिल रही है, बिजनेस करना है ऑफ कोर्स करेंगे, बट कुछ तो अपने लिए भी करना है ना. तो वापस से मैंने शुरू की पोकर जर्नी अपनी. टच वुड, आई एम डूइंग गुड. एंड देन आई गॉट एन ऑफर फॉर अ शो दैट यू जस्ट मेंशन्ड. इट्स कॉल्ड द सर्किट. सो द सर्किट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर top 16 poker players of the country are invited, and it's an invite only event, so as it is very prestigious, and we go there, compete with each other in 4 different formats, and the one winner is crowned. So it's a very, very, very prestigious event to be in, and I got myself there. I did 3 seasons of it, so I'm pretty good doing good there. It's helping me come back in life. It's helping me come back in poker. It's giving me good memories. It's giving me good vibes. So I'm like, yeah, sticking to that for now. Oh, so great. So this Poker Bazi is series, right? It's a series. Yeah, this is a series made by Poker Bazi. Poker Bazi is India's biggest poker platform, like India has ever seen. तो शार्क टैंक में सबको सिखा दिया पोकरबाजी उसने. फिर वही देखो, पोकरबाजी की बताने में जरूरत ही नहीं. नहीं ये तो है, फैक्ट है. मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड का, उसने बहुत मेहनत करी है इस जर्नी के लिए. कभी उसको भी लाएंगे आपके पॉडकास्ट. आई थिंक ही हैज शार्क टैंक का डील क्रैक करना वाज शार्क टैंक आईपीएल में हर ब्रेक में आ रहा है. हाँ. हर ब्रेक में हम जैसे इडियट्स का चेहरा आ रहा है आईपीएल में हर ब्रेक में. और क्या चाहिए हमें? नहीं ये तो पोकरबाजी ने हमें बनाया है कुछ. हम पे इन्वेस्ट कर रहा है. हम मतलब हम कौन है यार? हम 10,000 फॉलोअर्स. एंड आई थिंक वी हैव कम और काफी फार दैट अब ये तो चीजें काफी इन हो ही गई हैं. ऑनलाइन बाजी का स्टेक 49% नजारा ने भी ले लिया, नजार टेक्नोलॉजीज ने. सो इट्स बिकम सो बिग दैट I cannot even tell you what is in store for people who love poker. That's nice. और बताओ हाउस लाइफ अभी क्या तुम्हारा सीन है, कहाँ घूमने जा रहे हो? You travel a lot, I've seen that. Yeah, after my mom I was not traveling much, but before I had a small dream that I could not fulfill from so many years because of a lot of things. So as a poker player, when I started playing poker, every poker player has a dream to sit on a WSOP table, which happens in Vegas. It's the World Series of Poker. Stop there. What is WSOP? Please tell it to everyone. Yeah. So WSOP is World Series of Poker, where best of best from the world come and compete. And they play a tournament with each other. Whoever wins the world. Wow. And is it a good money prize? Is prize money for that? Yeah. Crazy. 100 CR plus. Wow. And it's in Vegas. And it happens every year. This is the 56th year. And you're planning to go there? Yes, I am planning. So I've been planning to go there from the last 10 years. I'll tell you why I could not be there. For the first 3-4 years, I was prepping myself ki nahi, I want to be good before I go. But when I got good, I needed some amount of fund to go there. I had those funds. But always in the month of April and May, I would try to double those funds so that I can have more fun in Vegas. Ended up opposite. Yeah. So 7 years passed by like that. 3 years, my mom wasn't well. Last year, my mom was kind of doing better. I booked the tickets 6 days before my tickets. My mom passed away again. So this year I'm hopeful I make it. I have the tickets. I'm leaving in 20 days about from now. I wish I'm able to fulfill. No, I'm sure she's there. I think she'll make sure this time. 100%. 101%. She's gonna make sure I'm there this time. It's not on me now. It's on her. And if she doesn't want me to go there, I won't reach there. So if I don't reach there, both time being disheartened में. हाँ. मम्मी को मना कराया. हाँ बस. अगले साल देखिए. ट्राई हर साल करेंगे. मम्मी को करना हो अगले साल भी मना कर देंगी. मम्मी एक छोड़ के जा रही है मुझे. By the way, he's a big drone maniac. अभी इसको recently ड्रोन का शौक चढ़ा है. So ये हर घर में ड्रोन उड़ाते घूमता है हमारे यहाँ. So मेरे को देखिए कोई शौक नहीं है. मेरे को सारे शौक, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं साधु हूँ, बट शौक बोल के कुछ नहीं है. ना मुझे जूते खरीदने पसंद, ना मुझे घड़ियां पसंद. मैं एक छोटी टी शर्ट और अपने जॉगर्स में निकल जाता हूँ. ना मेरे को बहुत महंगी. वो तो मैंने देखा है एयरपोर्ट में भी तुम अपने चड्डों घूम रहे हो मस्त शॉर्ट्स में.
मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मेरे को अब बुरा भी लगता है, मैं शॉर्ट्स में जाता हूँ, जब भी बिजनेस क्लास की लाइन में लगता हूँ बोलते हैं ए इकोनॉमी वहाँ है। तो पहले कुछ साल तो मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया कि नहीं मैं बिजनेस में ही हूँ। अगले 2 साल मैंने बोला मेरे को पढ़ाई हो रहा है, दिख रहा है, मेरे को दिखता है, मेरे को समझ में आती है। अब मैं इग्नोर करता हूँ, मैं ईयरफोन लगा के ऐसे ऐसे चलते रहता हूँ, बकते रहो तुम। मैं टिकट दिखाऊंगा, वो बंदी मेरे को बोर्डिंग कार्ड दे देगी बिजनेस का, आई एम गुड। नहीं, और दूसरा मुझे ये जानना है कि फॉर एग्जाम्पल द वे यू स्टार्टेड इन पोकर, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज योर एंड गोल अल्टीमेटली इन पोकर? WSOP. WSOP is the final thing, na? That's good. WSOP is the biggest end goal for any poker player in the world, World. or whoever has spelled poker also. उसके लिए WSOP is the shit. What is your favorite hand in poker? Like एक होता है ना सबका, हर प्लेयर का एक। नहीं, मैं ऐसे फेवरेट हैंड बनाऊंगा तो मैं ऐसे तो सबके हैं। हाँ तो फिर वही है। नहीं, एक होता है ना कि एक मेरा लक है कि ऐसे कोई नहीं बोलेगा, एक अच्छा पोकर प्लेयर ही बोलेगा, क्योंकि उसको दूसरे हैंड से शादी करके मरना नहीं है। मैं किसी हैंड से शादी कर लूंगा, मैं किसी ना किसी टूर्नामेंट में उस हैंड पे उड़ा दूंगा, तो मेरे को फेवरेट हैंड बनानी नहीं है। करेक्ट। सो हैड जलान, मेरा थॉट प्रोसेस पोकर के लिए बहुत अलग लेवल पे चलता है। क्या बताओ, प्लीज गिव अस 3-4 टिप्स। मैं मतलब टिप्स यही है कि आप किसी हैंड से प्यार कर लिए कि भाई ये जैक 10 मेरा फेवरेट हैंड है, तो आपका 5% मन हमेशा इंक्लाइंड होगा वो हैंड खेलने का, सिचुएशन सही होना हो। क्यों पढ़ना है सिचुएशन में, प्यार करो ही मत जब निभाना पाओ। एसिस से प्यार करो, हर बार निभाएंगे। मेरा ब्रंसन था, उसमें हमेशा हारता था मैं, बस हमेशा। यही सब गड़बड़ है हमेशा। वो तो चले गए मैं फंसा के और हमारे ब्रंसन साहब चले गए, आप फंस गए उनके ट्रैप में। ये हो चुका है मेरे संग। सो हाउ इज पोकर सीन बनारस? होते हैं बनारस में पोकर सीन्स? पोकर प्लेयर्स बहुत हैं और पोकर सीन्स होते हैं, और आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा जो मैं गारंटी लेता हूँ आपके व्यूअर्स को नहीं पता है। इंडिया में पोकर ऑनलाइन हर जगह लीगल है, 2 स्टेट छोड़ के, तेलंगाना और समथिंग। ऑफलाइन पोकर गोवा में लीगल है, कलकत्ता में लीगल है, बैंगलोर में लीगल है, बट 12-1 बजे तक। गोवा में 24 आवर्स लीगल है। उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट जहां पोकर 24 घंटे लीगल है। हम कभी भी कहीं भी खेल सकते हैं, हमें बस TDS पे करना है। क्या बात कर रहे हैं? एंड आई एम प्लानिंग some things in UP with Pokerbazi. Until then, I would like to tell you there are few brands of Bangalore that have opened their poker rooms in Agra, Kanpur and Noida, and they are doing like really good. Oh. So UP में पोकर आ गया है, मेरे 10 साल की मेहनत अब रंग लाएगी। नहीं आएगा। देखिए, आप मेरे को सेलिब्रिटी बोलते हैं, मेरे को ऑकवर्ड लगता है, बट आप मेरे को अगर ये बोलोगे कि तुम पोकर फाउंडिंग डेज के मेंबर हो तो मुझे तब अच्छा लगता है। पोकर एसोसिएशन ऑफ बनारस। हाँ, मतलब आप समझ रहे हो, अगर आज यूपी में पोकर लीगल हुआ है तो आई विल हैव द एज, बिकॉज मैं 11 साल से इस इंडस्ट्री में अपनी जान दिया हुआ हूँ। करेक्ट। इससे पहले आई थिंक यू परचेज अ टीम आल्सो, राइट? Yeah, there was a because I heard yeah. So MTV started a poker league where they were selling states ka team like IPL, and I had the rights for UP and all, but our investor of the league Raj did not have a fine track, so Raj को अच्छा, तो उसके वजह से वो league turn off हो गई। Okay, but it was a very good property though. हाँ, मतलब I have heard a lot about it. अच्छा, दूसरा मुझे ये जानना है कि how is Jalan and Bollywood related? How do you get to know so many people? How do you get to invite so many people? What is the trick? I'll tell you. Spill the beans. Yeah. I'll tell you how this journey started. So first, I was living in a nice apartment in Bombay, so I had like a couple of neighbors there. And second thing is, it's not like celebrities don't want to play poker. And right now, with the growing poker industry needed celebrities. So I became somehow the bridge between the poker industry's endorsements and the Bollywood people endorsements. Okay. So whoever Bollywood people wanted to play poker, they would get in touch with me through someone. I would crack the deals for them, with them for poker websites, and we would travel together. And फिर धीरे in journey, when you are actually a nice person, you make friends, and नहीं, वो तो है, वो life goes on. You are like that. And then life goes on. I have nothing to do with Bollywood. I have no investments there, nothing, not even planning anything. It's just all friends, and like जिसको पोकर खेलना है वो ऐसे ही दोस्त हैं, थोड़े उनके दोस्त हो गए, वैसे ही लाइफ चल रही है। और दूसरा, इस शहर की बात अलग है। जो भी शहर आता है एक उम्मीद से आता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन हो जाए, और ऐसे दर्शन हो जाए कि मन खुश हो जाए। आज अगर मेरे 4 दोस्त हैं बॉम्बे में, तो वो चारों पहला लाइन तो यही बोलेंगे उन्हें कि भाई बनारस जा रहे हो, अभिषेक जलान के साथ जाना, मंदिर बढ़िया दर्शन कराएगा। क्योंकि भक्ति भाव तो अपना भी है, कॉन्टैक्ट्स हैं वो अलग है, भक्ति भाव भी है अपना। करेक्ट है। तो वैसे ही कभी कभी लोग आ जाते हैं। जैसे दिशा पटनी को मैं बिल्कुल नहीं जानता था, मेरे को किसी बॉम्बे के दोस्त का फोन आया कि दिशा पाटनी आ रही है, आप उसे दर्शन कराने ले जाओगे। मैंने बोला ऑफ कोर्स, लाइक व्हाई आर यू इवन आस्किंग, मैं पर्सनली दर्शन करा के लाऊंगा। अब फिर दिशा से टर्म बन गए, तो वैसे उनके थ्रू किसी और से ऐसी लगता रहता है वो। नहीं, दैट्स गुड। और दूसरा मुझे ये बताओ कि अब जैसे इफ जलान हैड नॉट बीन इन पोकर, जलान किस इंडस्ट्री में होता, किस लाइन में होता, क्या कर रहा होता? अगर मैं पोकर में नहीं होता तो 1% तो चांस है मैं अपने बिजनेस को ही देख रहा होता, बिकॉज मारवाड़ी लोग को तो इंजेक्शन लगी हुई है बिजनेस की। बचपन से घर से निकलने से पहले बेटा वापस आना, दुकान तो देखोगे ही, देखोगे तो चलोगे कैसे, थरी दुकान है।
सही बात। थारो पैदा होने के पहले ही मैंने डिसाइड कर दिया था थारी दुकान है तनो ही देखने है। तो वही वाला चैप्टर है। वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे भाई के साथ भी होता है, मेरे चाचा के बेटे के साथ भी होता है। बेटा है पॉडकास्ट के पीछे सुन रहा है। नहीं दैट्स गुड। देखनो तो दुकान ही पड़सी, बाकी थे जो भी कर लो। नहीं बट देखिए सबका अपना अपना इवेंट लाइन perspective में है। होता है, प्रोडक्शन लाइन में होता हाँ मेरे को भी ऐसा लगता है बिकॉज जब बाय द वे अभिषेक आई थिंक एवरी ईयर और एवरी सेकेंड ईयर है। थोड़े थोड़े टाइम थोड़े-थोड़े ऐसे जैसे calls आती अभिषेक है। अपनी कंपनी के संग एक सूरत ड्रीम्स के संग अपनी अभिषेक जलान जो उनका खुद का ब्रांड है वो ये लोग एक बहुत बड़ा फैशन शो ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसको हम कवर करते हैं। और ट्रस्ट मी उस समय बनारस में जो ग्लैमर होता है यू कांट बिलीव इट। और दूसरा कि बेस्ट पार्टी होता है उसमें ऑडियंस बाहर के कोई नहीं होता, सिर्फ जलान के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो जलान के शेयर होल्डर्स होते हैं, जो जलान से परचेजिंग या बाइंग कर रहे हैं उस 2 दिन के फेयर में, हम लोग उनके कोशिश लिए फैशन शो होता है पूरा। उनके लिए कोशिश करते हैं कुछ अच्छा कर पाए, जो मतलब हम बाहर देखने से एक्चुअली वो फील अलग आती है। जो आप तो कवर करते हो सर, आप देखो कितना भाई अलग भाई बहुत अलग खुशी बहुत अलग फील, नो डाउट सर। वो अपने गांव के लोग हैं, उनको अगर ये प्लेटफॉर्म हम यहाँ देके खुशियां दे सकते हैं तो क्यों मतलब दे कांट इवन इमेजिन इवेंचुअली उन्हीं का पैसा है सर, उनसे ही वही तो भर रहे पैसे। बात है भाई, एवरीवन डज नॉट गिव इट बैक, मतलब वो वाली बात भी है ना कि तो दादाजी बोल के गए थे जैसे मम्मी ऊपर से देख रही है वो भी देख रहे हैं, एक को खुश रखो एक को नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम है। करेक्ट है, तो सबको खुश रख के चलते हो तुम। एंड हाउ डू यू मैनेज कोशिश भी ना करें तो फिर मैं क्या कर दिया। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। हाउ डू यू मैनेज योर बिजनेस आल्सो? Last 6-7 months I've been not overlooking it that much because I've not been in the great shape mentally, but now you can see me, I'm going better, so I'm joined business again. And last few months I was just trying to keep myself away and find some solace and peace. Now I think I'm better. I've accepted that my mom is not physically here with me anymore. But she's there. Yeah, so it took me a while to accept the truth. So now I'm back. Okay, now अब मुझे ये जानना है how मैंने अभी recently देखा you've been into a little spirituality also, अब थोड़ा you have bent towards that. देखिए बचपन से चलते हैं। बचपन में सबसे पहले अगर गिरते थे तो क्या चिल्लाते थे? हे भगवान। मम्मी। हाँ मम्मी बोलते थे सबसे पहले, चिल्लाते थे मम्मी। सेकंड क्या चिल्लाते थे? हे भगवान मुझे बचा ले। माँ के जाने के बाद कुछ समझ नहीं आई तो भगवान ही दिखे। भगवान से कनेक्ट करने के लिए मेरे गुरुदेव, मतलब मैं आपको बताता हूँ मेरी फैमिली बहुत स्पिरिचुअलिज्म में हमेशा से, आई एम नॉट अगेंस्ट इट बट आई वाज नॉट वेरी इनटू इट। एक्चुअली हम लोग जनरेशन कभी देखी ही नहीं है कि करेक्ट, बट देन आई एंडेड अप मीटिंग दिस पर्सन जो मेरे गुरुदेव पूज्य इंद्रेश जी महाराज, उनसे मैं मिला और मेरे को कुछ ऐसा फील हुआ कि मम्मी ने इनको भेजा है मुझसे बात करने। रियली? और उनके साथ में ओपन अप हुआ। उसके बाद मेरे सर्वोपरि वही है, वो उनके लिए जान नछावर है, चाहे वो जो बोल दें। मैं अपनी कठिन से कठिन बात उनसे शेयर करता हूँ, बस उनके पास बैठ के उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। वो मैजिशियन नहीं है कि ऐसे ये दवाई खा लो तुम मस्त हो जाओगे, कि ये पूजा कर लो, नहीं, वो तुमसे बैठ के सिर्फ बातें करते हैं। उनका ऑरा ही वैसा है कि तुम हिल जाओगे। तो मेरी जिंदगी का जो आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, जो मैं अपने डिप्रेशन से निकला हूँ, आई वॉज ऑन अ लॉट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। आई यूज्ड टू स्टे अलोन, आई वॉज इन अ wellness center come rehab. I was going through a lot of things because my mom was like my god. My mom is still like my god. I was never, whoever knows you, everyone knows that. yeah, I was not close to anyone. So after my mom I only found peace in Indresh ji. So that's where my spiritual calling was. Yeah, but ठीक है, I think इंद्रेश जी has really helped me. अरे भाई वो जादूगर है सही। ये तो मैंने मतलब गाना भी है जादू करके, अरे वो अलग है, इंद्रेश जी अलग है। क्योंकि जो बनारस के वो आए थे, अब you were taking through the whole, I was doing a कथा for my mother's demise. So हम मारवाड़ियों में होता है कि किसी के डिमाइस की 1 साल के अंदर एक कथा करानी होती है। somehow ended up इंद्रेश जी कर रहे हैं ना, I was like मम्मी का काम है, मैं जाऊंगा, ठीक है जो भी। So that is the first time you met इंद्रेश जी? उसके पहले इंद्रेश जी कोई तुम्हारा वो नहीं? वाह, मैं बस अपने मन को इतना बोला मम्मी का काम है, मन से होना, मन से करना है। और बहुत ही डार्क थॉट मैं आपको शेयर करूंगा, वो करना भी नहीं शायद, एडिट कर देना आप। उसके बाद मुझे लगता था कि ये मेरे लाइफ का एंड काम है, मम्मी का ये काम खत्म हो जाएगा, फिर आई विल गो मीट मम्मी, आई एम डन विथ लाइफ। बट इंद्रेश जी से मिलके एक नई लाइफ का नया पर्पस मिल गया कि नहीं, पागल हो क्या, लाइफ तो अभी बहुत लंबी है। फैक्ट तो है यार ये। एक गुरुजी 7 दिन में मिलके तुम्हारे थॉट को जीने की मोटिवेशन में बदल देते हैं, तो वो तो तुम्हारे भगवान बनेंगे ही। उनके लिए ही जी रहा हूं मैं फिर तो। एक्चुअली मेरे को ना ये उनने ही एक्स्ट्रा टाइम ऐड करा है मेरे लिए। करेक्ट है, क्योंकि दैट वाज अ गैप आफ्टर द आंटीज डिमाइज। उसके बाद तुम उसमें ही दिखे थे मुझे पहली बार। I cannot even tell you how depressed I was. I was eating pills, I was seeing counselor. I have no shame in accepting. I don't know why people
फियर इन एक्सेप्टिंग कि मेरे को डिप्रेशन है, मेरी मेंटल हेल्थ खराब है. गाइस, डिप्रेशन है, आप डॉक्टर को मिलिए, दवाई लीजिए, इसका और कोई इलाज नहीं है. आपके घर वाले आपको जितना भी मोटिवेट करें 100% वो भी काम करता है, बट जब आप डायग्नोस्ड हैं डिप्रेशन से और आप दवाई ना लें तो इट्स नॉट एडवाइजेबल. मैं भोगी हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ. एक लोग को भी समझ में आ जाए मेरी बात तो मेरे लिए सही रहेगा. किसी एक का फायदा हो जाए तो बढ़िया है भाई अपना. तो नुकसान कुछ नहीं है. जो है चोट लगती है तो लगाते हैं ना डेटॉल, कि घर वाले मम्मी बस बोल देंगी नहीं बेटा लग गई ठीक हो जाएगा. नहीं, डेटॉल तो लगाना पड़ेगा ना. तो वैसी डिप्रेशन की दवाई डेटॉल है. आपके स्कार को जब तक आप मतलब, आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, बट व्हेन इट्स नीडेड इट इज नीडेड एंड एक्सेप्ट दैट शिट. एंड यू हैव बीन थ्रू दैट सो यू नो इट बेस्ट. I'm coming out of it. You can see it too. Like I want to come out of it. You need your determination to like come out of it. But ठीक है, माँ का प्यार है, हो जाता है. हम WSOP की बातें करते हैं. Let's Yes. take it on a higher note. तो अब बताइए WSOP का क्या क्या प्लान है, क्या तैयारी कर ली, कितने की मैचेस खेल लिए तुमने? नहीं, WSOP की तैयारी तो 10 साल से चालू है. टिकट अभी की हुई भी है. हैंड सोचते होगे ना नींद में कि ऐसे नहीं, तो WSOP में मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैनिफेस्ट करता हूँ कि मैं उस फीचर टेबल पे बैठा हूँ और जो लोग मेरी जर्नी में नॉन सपोर्टिव रहे हैं उस दिन वो खड़े होकर तालियां बजाएंगे. फिर मैं बोलूंगा हाय बॉयज व्हाट्स अप. वही है, सक्सेस हैज सो मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन. सक्सेस हैज सो मेनी फ्रेंड्स, फेलियर हैज नन. स्ट्रगल आल्सो हैज नन. अब मैं WSOP 10 साल से पहुंचना चाह रहा हूँ, मेरी क्या स्ट्रगल है क्या नहीं है वो शायद किसी को पता नहीं रहेगी. अगर बाई चांस मैं वहां कुछ कर दिया, अरे जलान को तो हम कब से बोल रहे थे वो करेगा यार. वो तो आई एम रेडी फॉर दैट आल्सो. आई लाइक दैट आल्सो. आई लाइक, मेरे को मजा आता है. दैट्स गुड. तो थोड़ा क्या है, अनकन्वेंशनल प्रोफेशन भी मैंने चूज करा. तो लोगों ने मुझे बोला साइको, बट फिर मैंने बोला नो आई एम नॉट साइको. वही है यार. थोड़ा मेरी इन लॉ फैमिली भी नॉन सपोर्टिव है पोकर को लेके. उनको लगता है ये एक तरह का जुआ है. बट जब मैं सर्किट में टीवी शो पे आता हूँ और उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, इट्स अ लीगल थिंग. उत्तर प्रदेश में सब कुछ लीगल कर दिया इट्स एक्चुअली वेरी गुड थिंग, क्योंकि बहुत लोग कई टैबू है. तो अब ब्रदर मैं उस टैबू के लिए अपने लिए नहीं कर सकता. मेरी लाइफ मेरी है. अग्रीड. मेरी लाइफ तो मेरी है. मुझे अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ. जब मैं अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगूंगा कि मैं ये शायद गलत कर रहा हूँ तो मैं हट जाऊंगा उससे. मेरे को किसी की बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. बट जब मैं सही कर रहा हूँ, लोग नहीं समझ रहे, तो मैं सही टाइम का वेट करता हूँ. डायलॉग क्या जलान, मतलब ये लाइन्स हमें छुपी हुई तुमसे यार, कभी दिखे ही नहीं लाइन्स मुझे. दैट्स रियली गुड. स्क्रिप्ट है तो ये भी जो मन में दिल से निकलती है कह रहे हैं. I have never seen this side of जलान. I have always seen बातें हम चरपी जलान. हमने घूमता हुआ मिल हमने जाएगा. बातें कहीं और करी है ना. हाँ, फेस टू फेस सोफा पे बातें हमारी. करेक्ट पहली बात हो रही है. और सही समय का वेट कर रहा हूँ. मेरे को एक रागीर का गाना भी है, मैं कभी शेयर करूंगा, आपको लिंक दूंगा, इसमें डाल देना. ये जो हंस रही है दुनिया, मैं काम कर रहा हूँ मेरी नादानियों पे, मेरी नाकामियों पे मैं काम कर रहा हूँ. दोस्त है अपना. मैं मिला भी था, बनारस भी आया था. मैं आपसे बात अपने जिस इवेंट में बात कर रहे थे, रागीर भाई गाने वाले थे उस इवेंट में, बट आ नहीं पाए. जो लोग नीचे से जमीन से उठते हैं वो डाउन टू अर्थ ही होते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्ले आवर सेकंड सेक्शन ऑफ द एपिसोड, दैट इज रैपिड फायर राउंड. दिस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू. सो इसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको रैपिडली आंसर देना है. खराब बात इस रैपिड फायर की यही कि इसमें कोई कट्स नहीं और आप एडिट करोगे नहीं. मेरे मुंह से कंट्रोवर्शियल चीजें निकलती नहीं है. आई विल ट्राई माय बेस्ट. इसलिए मैंने रैपिड फायर रखा था. आप कोई बड़ा हैम्पर लाते तो मैं कंट्रोवर्शियल चीजें बोलूं, हैम्पर दिख नहीं रहा है, वरना मैं आपको चिपसेट पोकर चिपसेट दे दूंगा एक अच्छा सा. नहीं, आप फैक्ट्री को बोल रहे हो कि ये लो मटेरियल, कोपैक के 100 भेज दूंगा. कोपैक सेट आपको 100 भेज दूंगा. पोकरबाजी सेट को बहुत फैसिनेट करते हैं. कोपैक के सेट, वो पोकरबाजी के सेट भेजेंगे. डन. थैंक यू पोकरबाजी. हाँ, रेडी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का. वन हैबिट दैट यू वांट टू क्विट बट यू विल नेवर विल. आई लव स्लीपिंग लेट. That's my habit. And you want to quit that? I don't want to quit that. I like sleeping. So you like sleeping late and you. I like sleeping till late. Like I wake up very late in the morning. What is more addictive? Money, attention, or validation? तीनों ही हैं, बट addictive तो मेरे को लगता है validation चाहिए दुनिया को सबसे ज्यादा, कि भाई मैंने करा है. ठीक है. मेरी वजह से हुआ है. मेरी वजह से हुआ है. ठीक है. ऐसा कौन सा काम है जो सब छुपा के करते हैं लेकिन जलान खुलने में करता है? सच कहना और सच का सामना. बुरी लगे तो लगे, नहीं लगे तो अपनी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. इफ योर लाइफ हैड अ बैकग्राउंड ट्रैक, कौन सा गाना चलता? सपोज जलान चलते हुए आ रहा हो, पीछे कौन सा गाना चलना चाहिए उसमें? पीछे चलते हुए आ रहा हूँ नहीं, बट मेरे लाइफ को एक मैं सॉन्ग डेडिकेट कर सकता हूँ. बिकॉज जब मैंने ये अनकन्वेंशनल जर्नी पोकर की लाइफ चोरी की थी, सबको लग रहा था मैं गधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. बट जब मैंने कर लिया तो वही सारे लोग आज अप्रिशिएटर्स भी हैं. तो 4 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा. ये बढ़िया 4 लाइनें हैं. ये जो हंस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे, ताने कस रही है दुनिया मेरी नादानियों पे, पर मैं काम कर रहा हूँ अपनी सारी कमियों पे.
कल ये मारेंगे तालियां मेरी कहानियों पे, कल जो बदलेगी ये हवा साले शर्माएंगे, हमारे अपने हो कह के बाहें गरमाएंगे। ये गाना है रागीत साहब रागीत का। का। और एक लास्ट क्वेश्चन, वन थिंग दैट बॉलीवुड कैन लर्न फ्रॉम बनारस। इनडिसिप्लिन, लेस वैल्यू फॉर टाइम। अरे हो जाएगा यार, कल देखल कल जाएगी। देखा जाए, कल देखा अबे जाए। कहाँ शूट वूट करत हुए, कल देखल जाए, चला अभी भांग छानी। नहीं, मैंने एक चीज रियलाइज की है, बनारस में गदौलिया के इस तरफ, मतलब टूवर्ड जहाँ हम लोग सब लोग रहते हैं उस तरफ, और गदौलिया से घाट की तरफ लाइफ इज टोटली डिफरेंट। अरे भाई हर जगह लाइफ की कहा गया भांग छानी। हाँ, सबका यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी वही होती है। अच्छा ये भी एक कल्चर है। जब तुम यहाँ से बॉम्बे जाते हो तो बनारस का क्या मिस करते हो? फैमिली, दैट इज वन। सेकंड? बाकी तो यार मैं बनारस के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं, मेरी फैमिली बॉम्बे में है तो मैं ऐसा कुछ मिस नहीं करता हूँ। आई एम लिविंग द बोथ ऑफ बेस्ट वर्ल्ड्स। बनारस रहता हूँ मैं, महीने में 15 दिन बॉम्बे। आई एम बैलेंसिंग माय लाइफ प्रीटी वेल, आई एम गुड। And how was your Diljit experience? Because I spotted you. Yeah, so that was the first time I ever stepped out after my mom. It was like दिलजीत भाई के लिए तो एक बार कर लेंगे। अच्छा था। आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया। पाजी की बात ही ऐसी है लेकिन यार। तुम थे आगे वाले में, हम अरे थे तो पीछे वाले में। आपकी गलती है, आप साथ चलते थे। उसमें ये था, लेकिन हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। अब निका चलते चलते गिर भी गई थी उसी में, Oh, बट देन शी कुड मैनेज। मजे आए। बहुत इट वाज आगे पीछे ऊपर नीचे मजे आने। क्या प्रोडक्शन यार, मतलब टू गुड। जीत पाजी फॉर द विन। हाँ, एंड प्लस बॉम्बे में उनको देखना ना अलग फील। भाई मैं बॉम्बे के अलावा किधर बस नहीं जाता, यही मैंने- हर जगह इनडिसिप्लिन है। हाँ, बॉम्बे में क्या सिविक सेंस है। 100% बॉम्बे की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, बॉम्बे में सिविक सेंस है। कोई भी बदतमीजी नहीं करता, नहीं कर सकता, ये तो हमने देखा। करता ही नहीं, कर सकता तो पैंट मैटर दिल्ली तो हमारी टेबल है सामने से हट। हाँ, ब्रदर आओ, सब ब्रदर आओ से ही वेलकम तो करते करण औजला का जो हुआ था उसमें कितनी मारा पिटी दिल्ली में हैं। होती मैं थी। दिल्ली के वीडियोस ही देखना बंद कर दिया हूं, मैं अपने एल्गोरिदम में चाहिए ही नहीं वो सब। चलो, थैंक यू सो मच अलान, आपने टाइम दिया इतना सारा हमको। ब्रदर मैं तो और दे दूंगा, आपसे मेरा कब का है रिश्ता। नहीं, बहुत 2015 से। ये भी एक चीज 10 years लोगों with को Jalan। सिखाना चाहूंगा बनारस वालों से कि बुरा पार्ट तो सुन लिया आपने कि भाई इनडिसिप्लिन, ये निभाना सीखो आप बनारस वालों से। बॉम्बे वाले इतना निभा नहीं पाएंगे कभी, और निभाने वाले होंगे 10%, कि जो 10 साल पुराने रिलेशन निभाएंगे और उस तरह से ही निभाएंगे जिस साल 10 साल पहले भी थे, भले ही तुम 6 साल बाद मिले। मिल रहे हैं, करेक्ट है। ये तुम बनारस वालों से अपनापन सीख सकते हो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया। यो अब ये हम लोग एपिसोड एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स वन अगेन।